Okay, now we are going to move for the next discussion or topic, that is deleting index. ये विजुअल है सभी को? अगर है तो रेज हैंड कर लो आप लोग. Basically in pandas, whenever we needed to delete the index, we can perform it using the two basic method of data actually pandas. First one is that is called reset index. Reset index is basically a function to reset the entire data frame indexes. I just need to do it. Add to dictionary. And the another way that is very common, that is called drop. Actually, drop method is used to drop the data frame index or rows and column related to the data frame. Actually, drop का use बहुत सारा है. लेकिन अगर reset index कहेंगे तो reset index basically index को reset करने के लिए है. ये visual है सभी को? काफी छोटा दिख रहा होगा मे बी. अब visual है? Yes, sir. चलो, okay. So now come to the point, how actually we can perform reset index function and drop function in the data frame using pandas. So here is a syntax that help us to perform this operation. Okay. Syntax is, you just need to use a data frame dot reset index function. Okay. And using it, we have to provide drop function here for the drop function for the index of the data frame. Actually ये नोट वन नोट का प्रॉब्लम है. ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको इग्नोर कर लोगे आप लोग. ठीक है. अनदर वन वी कैन आल्सो अप्लाई इन प्लेस. और बेसिकली ये पार्ट हमारा जो इन प्लेस का है दैट इज ऑप्शनल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो अगर आप इन प्लेस नहीं भी देते हो देन इट विल वर्क. ओके. तो इसी ये हमारा सिंपल सा सिंटेक्स है रीसेट इंडेक्स का, जो कि किसके हेल्प से होता है? ड्रॉप के हेल्प से होता है. अनदर वन, आप इस चीज को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप. ये ज्यादा कन्वीनियंट भी है. एक्चुअली मोस्टली टाइम हम लोग इसको ही यूज करते हैं. इंडेक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप जो भी इंडेक्स पास करना चाहते हो वैल्यू, अब वो वैल्यू पास कर दो. यानी जो भी इंडेक्स आप रिमूव करना चाहते हो उसको डायरेक्ट आप राइट कर दो, देन इट विल रिमूव द सेम डेटा फ्रेम रो इंडेक्स. क्लियर है? तो समथिंग्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी होने चाहिए. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द रियल टाइम एडिटर दैट इज गिवन हियर. एक मिनट स्टॉप करता हूँ. Now we are going to move for this part. Here I am going to create a data frame and perform the drop index method. So I just need to use pandas library as pd, and we can also use numpy, but I think there is no use. अब यहाँ पे तत्काल में हमारे पास कोई ऐसा यूज नहीं. Simply you should call a variable data and provide the dictionary here, like name A, B, C, C, and D, last one. Here is the another data address that is key here.
Address is first is Gaya, second is पटना. ये विजुअल है सभी को बढ़िया से? अभी ज्यादा विजुअल होगा अच्छे से. नेक्स्ट वन इज रांची, and the last one is that is called Tata, Jamshedpur. Next, I'm just going to use this data frame inside a data frame. Sorry, actually dictionary to the data frame. Data and run it. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? सर पीडी छूट गया. पीडी लिखा ही नहीं है. होता है, कोई बात नहीं. Wait for a few seconds. Sorry. It will perform the operation. Here is the data that I have created, and there is an index 0, 1, 2, 3. These are the indexes of this particular data frame. Now we are going to apply the concept of dropping of index. So now I created a variable df1 and put the value of the data frame index that is going to be dropped. Here is a drop, and use the index and provide the values related to removing the data object. Like I'm data object, index. As I put 1 as an index of for Patna A, so now this particular set of data is going to be removed by using this particular set of statement. And now I'm just going to show it. Here you can see that one is replaced, one is actually removed from the data frame, but whenever we use df, then it will have the original data. That means originally available होता है ये हमारा data, लेकिन आप जो भी temporary इसको आप remove कर सकते हैं. अब जैसे as for example ऐसा application कब हो सकता है? Actually whenever we created a set of data frame and wanted to share with colleagues, or we can say that the team members, but I don't want to share original data, then we have to create a range of actually the duplicate copy of the data frame. So the operation performed by the other team member is not going to be saved or going to be changed over the original data. That's why we use the third variable, that is the df1 here. Concept समझ में आ गया आप लोगों को? How actually you can perform drop index method over here. अगर आपको समझ में आ रहा है, raise hand कर दीजिए. Do it fast. Good. Now come to the point. We are going to switch from here and move to the another part. Sorry, मैंने यहाँ तो नहीं किया था, यहाँ किया था. So actually we have performed these operations. ठीक है, reset index भी आप कर सकते हो, same process में काम करेगा, लेकिन इसमें in place optional है, you don't need to do that. ठीक है. Next part, we are going to change the topic. Actually we are going to perform some database operation over the data frame. यानी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे डेटा फ्रेम, या फिर डायरेक्टली टॉपिक का नाम ही लिख देता हूँ, MySQL कनेक्शन इन पाइथन pandas. ठीक है, ये फिर माई कैपिटल में हो गया, ऐसा चलेगा? कैपिटल ही होनी चाहिए. अब हम लोगों ने जो भी काम किया हुआ है वो हमने किया है यूजिंग डेटा फ्रेम और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस. अब हम लोग कुछ एक्सटर्नल काम करने वाले हैं. जैसे हम लोगों ने CSV पे काम करना सीख लिया कि हाउ एक्चुअली वी कैन परफॉर्म CSV ऑपरेशन ओवर द डेटा फ्रेम. अब आपको मैं एक न्यू टर्म यहाँ बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड MySQL कनेक्शन. What actually the MySQL connection is here? First you have to understand. Actually, whenever we are working with any programming language, then we will have to perform or we have to use number of libraries that is related for different purposes. So whenever we are actually
working on a runtime project or a semi project, then we have to focus over what actually the basic part of the application. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो किसी भी ऐप का, किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम पार्ट की बात करें तो उसके दो एंड होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड द अनदर वन इज कॉल्ड बैक एंड. ठीक है, फ्रंट एंड मींस basically the user interface that is going to be faced by the users, and the backend means the set of a statement that is executed inside the application that is not going to seen by the users. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रेज हैंड करो जल्दी से, डू इट फास्ट. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है अनम्यूट करके पूछो आप. मैं आपको इसको वन बाय वन समझाऊंगा. देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करते हो ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज आप यूज करो, पाइथन यूज करो, सी करो, सी प्लस प्लस करो, आप सी शार्प करो या पीएचपी करो, कोई भी लैंग्वेज में जाओ, जहां भी आप लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे दो एंड होता है. एक होता है फॉर योर क्लाइंट एंड, जहां पे आपका क्लाइंट काम करेगा. अब वो क्लाइंट हो सकता है कि एक फार्मर हो सकता है कि वो एक बिजनेसमैन हो सकता है कि वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी पर्सन. तो उनके लिए जो हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं दैट एक्चुअली कॉल फ्रंट एंड. तो नॉर्मली आप जैसे HTML वगैरह डिजाइन करते हो, या फिर जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो, एंटर अ प्रोग्राम टू डू दिस थिंग्स, तो आप वहां पे क्या करते हो, यूजर को इंस्ट्रक्शन देते हो, प्लीज एंटर दिस एंड आफ्टर दैट योर प्रोग्राम विल produce some set of output. That means at that time backend program is executed, that is not going to be seen by the users normally. So we can say that backend is a part of the programmers, वो हम लोगों के लिए होता है. And for this one we have to go for the term that is called database. Actually backend में काम कहाँ होता है? तो backend में आपके डेटा पे काम होता है, यानी डेटाबेस पे काम होता है. And we have to study MySQL, MongoDB. These two are the domain that we have to understand in the class 12 syllabus. ठीक है, ओवरऑल अगर हम सिलेबस देखेंगे तो आपको यही दो पॉइंट को आपको स्टडी करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा आपके पास SQLite है, ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से बेसिक पढ़ना है. मोस्टली जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ है? MySQL के ऊपर में है. तो नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर पाइथन लैंग्वेज टू द MySQL. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा. जब तक जैसे हमारे पास अगर कोई डेटा कॉल हो रहा है, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखलाता हूँ रियल टाइम सिस्टम पे. मैंने यहाँ पे एक कॉल किया, हमने लिखा google.com. ठीक है, हमने अभी यहाँ पे टाइप किया डेटा फ्रेम इन पाइथन. ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया. तो रियल टाइम में बैकएंड में क्या हो रहा है? बैकएंड में देखो आपका सेट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, और इस पार्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को, यानी कि इस पार्टिकुलर सर्च को कॉल करने में इसको कितना सेकंड लग रहा है? ओनली 0.46 सेकंड. मतलब इसका डेटाबेस कितना स्ट्रॉन्ग, डेटाबेस का सर्वर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, और इस पार्टिकुलर कीवर्ड पे ये कितने रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है? तो दैट इज अबाउट 1,65,000 रिजल्ट अवेलेबल है. यानी एक छोटे से स्टेटमेंट पे इतने सारे रिकॉर्ड्स आपके जनरेट हुए, जो कि आपको यहाँ लिस्टिंग भी दिख रहा है. हम अभी कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, किस लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं, इवन ये सारा रिपोर्ट अवेलेबल होता है. मैं बिहार से एक्सेस कर रहा हूँ अभी इसको. दैट मीन्स ये आपको हर एक चीज एक्सेस करके दे रहा है, लेकिन ये चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है हम इसको देख नहीं पा रहे. तो यूजर एंड में क्या मिलता है? सिर्फ यूजर इंटरफेस जिसपे आप काम करते हो. जैसे हमारा ये सर्च बॉक्स है, अगर आपके सिस्टम में माइक है तो आप माइक से कर सकते हो, या फिर आप क्लिक करके सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो. ठीक है, तो सेम प्रोसेस में आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि MySQL क्या है, या MySQL कनेक्शंस कैसे करते हैं. तो इसके लिए आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसेस स्टेप आपको फॉलो करना है टू वर्क विथ MySQL कनेक्शंस. तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप स्टडी कर लीजिए और इसको यूज कीजिए. ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? यस सर. ओके, अर्नव. यस सर.
अब देखो, अब तुम्हारे पास एक टाइम है, तुम सभी के पास एक्चुअली टाइम है, कुछ नोट डाउन करना है आप लोगों को, ठीक है? तो अभी अपना कॉपी निकाल लो और इसको नोट डाउन करो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सॉरी, MongoDB SQL लाइट MongoDB। ओके, देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि सबसे पहला काम क्या करना है, MySQL पे कनेक्शंस करना है, सॉरी पाइथन पे कनेक्शन करना है MySQL। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके सिस्टम में MySQL है या नहीं, और पाइथन है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप विंडो आर प्रेस कीजिए, CMD टाइप कीजिए एंड पाइथन लिखिए, एंटर की। ये आपका पाइथन प्रॉम्प्ट ओपन कर देता है, ये एक आईडी ओपन कर दिया आपका। अब यहीं पे आप डायरेक्टली अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। तो अगर आपके सिस्टम में, अगर आप विंडोज यूजर हो, तो आप अपने सिस्टम में ये चीज करके देखोगे, अगर ये काम नहीं कर रहा है, वहां पे अगर एरर आ रहा है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, तो क्या लिख रहा है, सॉरी एग्जिट करना पड़ेगा पहले यहाँ से, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। CLS बेसिकली कमांड है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब मैंने यहाँ मान लो कुछ गलती से कोई गलत कमांड डाल दिया, तो क्या लिख रहा है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दैट मीन्स कि जो कमांड आप ट्राई कर रहे हो वो इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, पाइथन लिखने के लिए। तो ये पाइथन हमारे सिस्टम में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मुझे इस पाइथन से बाहर आना है तो आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है, क्या करेगा ये, बाहर कर देगा। तो नोट डाउन कर लो कि हाउ टू गो इनसाइड द पाइथन एंड हाउ टू गो आउट फ्रॉम द पाइथन। ठीक है, जाने के लिए क्या लिखना है, पाइथन, और आने के लिए कंट्रोल जेड या फिर एग्जिट फंक्शन आप लिखोगे डायरेक्ट। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसमें भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मुझे देखना है मेरे सिस्टम में MySQL है कि नहीं। तो आप अगर MySQL यहाँ टाइप करोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपके इस सिस्टम के लिए नहीं है। मैं बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट किया मैंने। मुझे क्या करना होगा, मैंने शायद ओपन करके रखा हुआ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग, आपके मेन मेनू में जाने के बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आइकन आपको दिख रहा है, जैसे एनाकोंडा है, देन आफ्टर SQLite है, देन आफ्टर देखो SQL MySQL 8.0 क्लाइंट, यहाँ पे कमांड लाइन अवेलेबल है। दैट मीन्स इस सिस्टम में MySQL है। बस हमें इस पे क्लिक करना है एंड अपना पासवर्ड डालना है। अब मेरा पासवर्ड बहुत ही कॉमन है, ज्ञान@1 2 0 2। याद रखना आप सभी, मे बी मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो मुझे बताना, ठीक है? तो मैंने ये पासवर्ड डाला इसमें, एंड देन आफ्टर वी कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेस ऑफ द MySQL डेटाबेस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया, सो डेटाबेसेस एंड एंटर। तो ये क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम पे एग्जिस्टिंग जितने भी डेटाबेस है उसको शो करा दे रहा है। मैं इसके साइज को जरा सा लार्ज कर देता हूँ, ये काफी छोटा दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इसके बफर साइज नहीं, फॉन्ट के साइज को बढ़ा देता हूँ। नाउ इट इज गोइंग टू बी 24, ताकि ये यहाँ दिखे। अब अवेलेबल है आप लोगों को, दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन में अवेलेबल है आप लोगों को, कोई भी एक Yes, sir. अनम्यूट यस करके सर। ठीक है। तो दैट मीन्स आप यहाँ से वो सारे रिसोर्सेस एक्सेस कर पाओगे जो इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस देखा अभी कि डेटाबेस है रेलवे के नाम से, या MySQL है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है। तो हम यहाँ पे जो भी डेटाबेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया XIIIP। ठीक है, क्लास, मैंने इस नाम से एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है, तो वी हैव परफॉर्म। अब फिर से हम इसको शो करना है, तो शो डेटाबेसेस। आप लोग एक काम करोगे, क्लास 11 में जो भी आपने पढ़ा था उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है जिसको यूज करना सीखना है, जैसे शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, क्रिएट डेटाबेसेस, क्रिएट टेबल, देन आफ्टर इंसर्ट टेबल, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आपको याद करना है, तब जाके आप इस पे आगे अच्छे से काम कर पाओगे। तो हमने अभी देख लिया कि हमारे सिस्टम में हमारा ये MySQL भी अवेलेबल है। ठीक है, वी हैव ओके विथ विच एप्लीकेशन, पाइथन भी अवेलेबल है इस सिस्टम में, एंड MySQL भी अवेलेबल है। बोथ आर
अवेलेबल हियर। लेकिन मान लो एज फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू इंस्टॉल MySQL कनेक्टर, एक्चुअली इन दोनों के बीच की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें पाइथन और MySQL के बीच में हमें एक यहाँ पे एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस मीडिएटर को क्या बोलेंगे हम लोग, उस मीडिएटर को बोलेंगे हम लोग एक्चुअली MySQL connector. So what actually the MySQL connector is here? Actually MySQL connector is a module or the library available in Python language. Python language में एक मॉड्यूल का नाम है जो कि क्या करता है, जो बेसिकली आपका MySQL का स्पेलिंग थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया हमने, SQL। तो MySQL क्या है हमारे पास, MySQL connector is basically a library that is used inside the Python language for connecting MySQL server or command line or server to the Python। यानी हम दोनों के बीच काम करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। यू जस्ट नीड टू गो फॉर रन डायलॉग बॉक्स, टाइप cmd या कमांड लिखोगे दोनों चलेगा, एंड ओपन इट। Here you need to use cd command. What is cd command? Anyone, boys and girls? ये क्लास 11 में ही पढ़ाया था हम लोगों ने। cd means change directory. cd means क्या होता है, change directory होता है। वेरी गुड, जिसने भी बोला। अब आपको यहाँ पे जाना है ऐप डेटा नाम के फोल्डर में। अगर मान लो आपको फोल्डर का नाम नहीं पता है कि क्या है, तो यहाँ पे dir कर दीजिए। जैसे आप dir करोगे तो यहाँ पे सेट ऑफ फाइल्स दिखाएंगे, ठीक है, इतने सारे फाइल्स दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डेट कहाँ पे जाना है आपको, ऐप डेटा नाम के फोल्डर में जाना है। तो हम पहले ढूंढ लेते हैं है कि नहीं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्क्रीन छोटा है हमारा, मैं इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ। आपको एक्चुअली बार बार करना पड़ता है, फॉन्ट में फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। चलो, ये स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सेस करना सीखना है। तो हमें क्या करना है, cd स्पेस ऐप डेटा। अगर आप विंडोज यूजर हो तो आपको याद रखना है ऐप डेटा में ही सारे एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे आप dir करो, बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं, आपको जाना कहाँ है, यू हैव टू गो फॉर द लोकल, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ कुछ समय में आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। CLS किस काम में आता है, टू क्लियर द स्क्रीन। dir किस काम में आता है, टू डिस्प्ले द डायरेक्टरीज। एक्चुअली फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। माई डॉस में या कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन एडिटर भी कहते हैं, या फिर इसको आप डॉस भी कहते हैं, प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम। तो अभी हमने जो यहाँ पे फोल्डर्स बनाए हैं, इस फोल्डर को यहाँ क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो नाउ यू हैव टू मूव फॉर प्रोग्राम्स। यहाँ पे प्रोग्राम्स दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हमें कहा जाना है, तो cd स्पेस प्रोग्राम्स, PROGRAMS, प्रोग्राम्स के अंदर आ गया CLS dir। अब हमें कहा जाना है, अब हमें जाना है अपने लैंग्वेज के अंदर। तो देखो यहाँ फोल्डर में नाम दिख रहा है आप लोगों को, मुझे ढूंढ के बताओ आप लोग। अर्नव, छवि, हर्ष, गौतम, केसरी, लक्ष्मी, नितिन, कोई भी बताओ मुझे। आपको यहाँ कोई ऐसा फोल्डर दिख रहा है जिसमें हमें पास करना होगा? अमन, भाई मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? सर हाँ, आवाज जा तो आ रही रहा है। है। तो बताओ जल्दी से। अभी देखो आपको यहाँ पे पाइथन नाम का दिख रहा है फोल्डर dir, जो कि हमारा 10 दिसंबर 2020 को बनाया गया है 5:31। हमें इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, तो हमें क्या लिखा होगा, cd पाइथन। अब हम यहाँ पे आपको सबसे एक बढ़िया चीज रिवील करने जा रहे हैं कि अब इसके अंदर हमारा स्क्रिप्ट किस पर्टिकुलर फाइल के फोल्डर के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखो इस पाइथन के अंदर पाइथन 39 है, यानी ये इसका वर्जन है, PYTHON, यानी कि 3.9 को यहाँ पे 39 लिखा गया है, याद रखना। मेरे सिस्टम में जो पाइथन इंस्टॉल है इसका वर्जन कौन सा है, 3.9, एक्चुअली 3.9.0 है।
तो इसको ऐसे ही लिखता है वो 39, ठीक है। नाउ CLS एंड DIR अगेन। अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर API फाइल्स दिख रहा है, ये एक्चुअली सिस्टम लेवल फाइल है कंप्लीट, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें इसमें जाना कहाँ है, तो हमें इसमें बेसिकली जाना है एक फोल्डर के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा है आपको, ये भी 10 दिसंबर को ही क्रिएट किया गया है। तो हमें CD करना है स्क्रिप्ट एंड देन आफ्टर फिर क्लीन करना है ताकि मुझे डेटा दिखता रहे। अब देखो, एक्चुअली आपको मैंने स्टार्टिंग में जब 12th क्लास हमने शुरू किया था तो आपको बताया था मैंने कि इफ यू वांटेड टू इंस्टॉल एनी सेट ऑफ लाइब्रेरी यू हैव टू यूज अ कमांड दैट इज कॉल्ड पिप। तो पिप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, pip.exe फाइल, यहाँ पे इस पार्ट पे मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे। तो ये पिप क्या है हमारे पास, तो ये पिप हमारा एक एप्लीकेशन है दैट इज यूज्ड टू इंस्टॉल मॉड्यूल्स इनसाइड द पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। यानी इस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज की जरूरत होगी तो पिप की मदद से ही काम करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा कमांड दैट इज पाइथन, ठीक है, -m, इसको हटा देता हूँ, बाहर आ रहा है ये, पाइथन -m, नहीं हो सकता है बड़ा, कोई बात नहीं, स्पेस पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस MySQL, स्मॉल में लिखना है आपको, डैश कनेक्टर एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर की। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन -m कोई यहाँ पे कमांड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है क्या, इसको चेकआउट कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पाइथन और -m के बीच में हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। मैंने स्पेस दे दिया एंड नाउ एंटर। अब जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट और डाउनलोड और इंस्टॉल द प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स रिलेटेड टू पाइथन MySQL कनेक्टर। तो देखो ये बारी बारी से उसको इंस्टॉल कर रहा है एंड लास्टली इट गिव द मैसेज सक्सेसफुली बिल्ट MySQL कनेक्टर, ठीक है, इंस्टॉलिंग कोलैबोरेटेड पैकेजेस। अब ये सारी चीज हमको इंस्टॉल करके दे दिया एंड नाउ आई हैव द MySQL connector module here, कह सकते हो library here, that is the where the version is 2.2.9, क्लियर है। तो ये स्टेप आपको हमेशा याद रखना है और इस स्क्रिप्ट को आप नोट कर लो। सी ड्राइव यूजर आपका नाम रहेगा, यहाँ पे DAV SR005 जहाँ लग रहा है यहाँ पे आपका नाम आएगा सिस्टम का, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 39 एंड स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे DIR करते हैं। अब जैसे हम DIR कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे कोई डेटा दिखाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया वो आपके पाइथन के लाइब्रेरी फोल्डर में स्टोर है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने इस स्टेप को फॉलो किया बिकॉज आई हैव टू एक्सेस पिप यूजिंग द कमांड लाइन, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। एक्चुअली इस काम को करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है, बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली एनाकोंडा नेविगेटर में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से आ जाओ, ये मेरे पास एनाकोंडा नेविगेटर विजुअल है सभी को, ये दिख रहा है सभी को, यस सर। अब डायरेक्टली यहाँ एनवायरनमेंट में जाओ और यहाँ जाके लिखो MySQL, देखो ऑटोमेटिक यहाँ गया MySQL। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जैसे देखो पाई MySQL, ये भी मॉड्यूल है, इसको भी पढ़ना है आप लोगों को और ये भी पढ़ना है, दोनों मॉड्यूल आपको पढ़ना है। ये अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एंड देन आफ्टर ये पहले से इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे जो भी चाहो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें एनाकोंडा नेविगेटर के लिए किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस पे काम करेंगे। तो चलो एक छोटा सा मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखलाता हूँ। Actually I have already used that one. Actually whenever you needed to connect any database or any system you need a module. अब मैंने कौन सा मॉड्यूल यूज किया है, हमने यूज किया है MySQL मॉड्यूल, MySQL connector module. Then we have to perform some set of operation related to this particular module. यानी इस मॉड्यूल पे काम करने के लिए इस मॉड्यूल के मेथड और फंक्शंस को समझना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होना चाहिए, वी हैव 6 मिनट।
तो आप लोग जैसा बोलो, मैंने इसको पॉज भी कर दिया है अभी। एनीवन? अभी मैं आगे इसको बढ़ाऊं या फिर इसको रहने दूं? मैंने आंसर आपके ऊपर छोड़ा है। हेलो? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। इसको मुझे भी लग रहा है कि यह टॉपिक ज्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, तो अभी तत्काल में मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। चलो।